Assalamualaikum everyone, welcome to my live session. So first of all, I go live. Let me go on different platforms and see if I can see myself live over there. And in the meantime, do let me know what do you think about today's topic. Cause today's topic, it's going to change your thinking, and I'm going to tell you certain things which you can do in order to cope up this anxiety, which is how to cope with media anxiety. So before starting and before digging in directly into the topic, let me go on different platforms and see myself. And in the meantime, आप में से जो लोग जहाँ कहीं से भी ट्यून इन करे हैं, do let me know आपका ताल्लुक कहाँ से है and where are you tuning in from. Okay, so I can see myself live on the different platforms, and yes. Yeah, so I can see. Okay, so you know what, I am sure आप में से बहुत से लोग हैं who must have felt a little anxious, a bit anxious, maybe a little, maybe a bit more anxious while scrolling the social media. Well, let me tell you, you are not alone. So आप अकेले नहीं हैं जो कि इस तरह फील करते हैं. There are so many जिनके साथ ये सब कुछ होता है when they are scrolling through the social media. So ये जो anxiety है, social media anxiety, how to tackle this anxiety, this is what we are going to talk about in today's session. So let me just see if I can see a few familiar faces over here, and then I can just start with giving you certain strategies, certain solutions, certain tips जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्क्रॉल करते हैं, यू जस्ट फील लाइक कि भाई आपकी जो लाइफ है वो आपके हाथों से स्लिप अवे हो रही है. सो हाउ कैन यू टेक अ कंट्रोल ऑफ इट, हाउ कैन यू कंट्रोल योर लाइफ विदाउट लेटिंग इट स्लिपिंग अवे, ओके, लाइक क्विक सैंड. सो यू नो व्हाट, फर्स्टली तो लाइक आमतौर पे जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, in fact what people think about is what is social media anxiety. So आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि what do you think, आपके लिहाज से social media anxiety क्या है, and in the meantime I can also tell you. So there is no right and wrong answer. हर एक के अपने experiences होते हैं. When we are on social platform, हम हर एक हम में से जो है अपने तरीके से जो है एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपने तरीके से इंगेज होता है और अपने तरीके से इफेक्ट हो रहा होता है. So that is how we learn by being on social platforms. So there is no hard and fast rule कि I say कि भाई according to what is social media anxiety for me it's this. So वो आप लोगों के लिए भी वही होगी. But generally अगर हम social media anxiety की बात करें, okay, let me see. So I can see someone live at the top of my screen, and it's Arslan. It's you. So I can see you live. So let me just explain what is social media. Social media anxiety. And okay, it's not Arslan. It's Sajid Bajir. Okay, thank you so much, Sajid Bajir, for watching and tuning into this live session. So social, and in the meantime आप भी मुझे बता सकते हैं कि what do you think about social media anxiety क्या होती है. So you know what, जब हम सोशल मीडिया एंग्जाइटी की बात करते हैं ना, तो इट्स दैट सिंकिंग फीलिंग जो कि आपको जो है ना, यानी आपको किसी को भी हो सकती है. और किस चीज़ से होती है कि जब आप कॉन्स्टेंटली जो है ना एक कंपैरिजन में जो है पड़ जाते हैं, लाइक यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ बाय पीपल्स पोस्ट, या मे बी जो है पीपल जो है डिफरेंट चीज़ें जो है पोस्ट कर रही हैं. दे कैन बी हाईलाइटिंग देयर हाई फाई लग्जूरियस स्टाइल, या कोई जो है अपने जो है ब्रांडेड जो है क्लोथ्स जो है पोस्ट करा हो सकता है, या कोई जो है अपनी जो है ज़िंदगी का जो है कोई हाईलाइटेड एरिया पोस्ट करा हो सकता है. सो उसको देखकर जो है बहुत से लोग हैं जिनका जो है ना दिल डूबना शुरू हो जाता है. दे हैव दैट सिंकिंग फीलिंग. और वो सिंकिंग फीलिंग जो है क्या एहसास दिलाती है. सो वो जो एहसास होता है ना जो उन चीज़ों को देखकर होता है, दैट इज़ एग्जैक्टली एंग्जाइटी. और वो एहसास कुछ भी हो सकता है, यानी वो एहसास ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड एहसास. वो सिंकिंग फीलिंग होती है ना कि भाई फलाना जो है ये चीज़ शो करा है, तो कोई लाइक देयर आर सो मैनी पीपल हु आर showing so much things, the total show off kind of things ना. कोई अपने जो है लग्जूरियस जो है लाइफस्टाइल को शो करा होगा, कोई उसकी ब्लॉग करा होगा, कोई अपनी फैमिली को शो करा होगा, कोई जो है कहीं पर
किसी जो है महंगी तरीन जगह पे जो है वेकेशन करा होगा, वो उसकी पिक्चर जो है शो करा होगा. सो इन सब चीज़ों को देखकर क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखकर अक्सर लोगों का दिल डूबना शुरू हो जाता है. और ये जो सिंकिंग फीलिंग है, ये जो एक फीलिंग है कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, कि सब लोग जो है ये कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई लाइफ चॉइसेस, या मैं क्या कर रही हूँ, कि आई एम नॉट गुड इनफ, वेयर एम आई इन माई लाइफ. सो ये एग्जैक्टली वही फीलिंग होती है जिसको हम सोशल मीडिया एंग्जाइटी कहते हैं. सो इस एंग्जाइटी से दूर रहने के लिए या अपनी लाइफ पे कंट्रोल करने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन से इक़दाम हैं जो आपने करने हैं, दैट इज़ वाई आई एम हेयर, कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूं और आप लोगों को वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं या कोशिश कर सकूं जिससे आप जो है ना आपकी लाइफ जो है कंपैरेटिवली ईजियर हो सके. So okay, I just saw someone else who was live, and so whoever is live, welcome to this live session. Okay, so you know what, जब ये फीलिंग्स आती है ना, इन फीलिंग्स के बाद आपने क्या करना होता है, ये बेसिकली जो फीलिंग्स होती है ना ये ट्रिगर्स होती हैं. सो आपने क्या करना है, यू नीड टू रिकग्नाइज द ट्रिगर. और वो ट्रिगर जो है क्या हो सकता है, वो जब आप स्क्रॉल कर रहे हो सकते हैं वो ट्रिगर जो है, लेट मी यू नो जस्ट गेट बैक टू द पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए लिखे हैं. सो वो ट्रिगर्स जो है, लाइक यू हैव टू आस्क सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर सेल्फ, लाइक यू हैव टू आस्क योर सेल्फ उन ट्रिगर्स को जो है उनको फोकस करने के लिए कि इज इट कंपैरिजन, क्या आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या किसी ने अगर जो है अपनी कोई हाईलाइटेड लाइफ का एरिया शेयर किया है उसको देखकर एकदम आपको जो है एक सिंकिंग फीलिंग होनी शुरू हो गई है, तो उसके बाद आपके जहन में क्या आया है, आर यू कंपेयरिंग योर लाइफ विद देम, या इज़ इट फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको जो है हमारी जो जेन जी की ज़ुबान है उसमें फोमो कहते हैं, फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो और लाइक यू वांट लाइक यू आर चेजिंग आफ्टर लाइक्स और वैलिडेशंस. सो ये जब आपके पास ये सर्टेन ट्रिगर्स होते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन ट्रिगर्स में से कौन सा ट्रिगर है जो कि आप अपनी लाइफ पे अप्लाई कर रहे हैं. सो वंस यू आर यू नो क्लियर अबाउट द ट्रिगर्स कि भाई आपका जो है कौन सा ट्रिगर है जो कि ये चीज़ें देखकर जो है यू नो हो रहा है या आपको वो सिंकिंग फीलिंग हो रही है, तो उसके बाद जो है स्टार्ट होता है कि आपने कौन से सॉल्यूशंस अप्लाई करने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपने अप्लाई करनी है ताकि आपको वो सिंकिंग फीलिंग ना हो, ताकि आप जो है जो सोशल मीडिया एंग्जाइटी हो रही है उसको कर्टेल कर सकें या अपनी लाइफ को जो है कंट्रोल कर सकें. सो उसके लिए जो है यू नो वेरी सिंपल तरीका विच आई अप्लाई ऑन माई सेल्फ एज वेल, एंड आई वुड यू नो वॉन्ट अदर्स टू यू नो बेनिफिट इक्वली. सो उसमें जो सबसे प्लेन तरीका है ना, दैट इज़ यू नीड टू लिमिट एंड डिटॉक्स. आपको सोशल मीडिया को लिमिट करना पड़ना है, अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करना पड़ना है. नाउ आई हैव हैड अदर सेशंस एज वेल कि भाई सोशल मीडिया पे जो है हाउ आर यू सपोज टू यू नो टैकल सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया पे जो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या व्हाट आर द थिंग्स यू आर सपोज टू डू ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू डू ऑन सोशल मीडिया. सो ये सारी चीज़ें मैं जो हूँ और सेशंस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. पर आज का जो सेशन है इट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट कि आप सोशल मीडिया एंग्जाइटी को किस तरह डील कर सकते हैं एंड यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. सो यू हैव टू यू नो लिमिट एंड डिटॉक्स. और उसमें क्या है कि यू हैव टू सेट स्क्रीन टाइम्स. और स्क्रीन टाइम्स जो है ना, लाइक यू हैव टू सी कि भाई अगर आपका काम ही सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है दैन यू हैव टू सी कि भाई आपने जो है हर टास्क को कितना टाइम ड्यूरेशन देना है. वैसे तो कोई भी टास्क अगर आपने करना है यू कैन ऑलवेज गिव 30 मिनट्स मैक्सिमम फॉर दैट टास्क. और अगर आप जस्ट वैसे ही सोशल मीडिया यू नो यूज़ करते हैं तो दिन का आधा घंटा भी काफ़ी है, या चलें अगर हद से ज़्यादा करना ही है तो 1 घंटा कर ले. बट देन वो जो आधा घंटा 1 घंटा है दैट हैज़ टू बी प्रोडक्टिव. यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव, नॉट दैट यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग, नॉट दैट यू आर जस्ट चैटिंग, नॉट दैट यू आर जस्ट कंज्यूमिंग यू नो यूजलेस एंड टाइम वेस्टेड कॉन्टेंट. तो आपने वो चीज़ें भी नहीं करनी व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिटॉक्स योर लाइफ फ्रॉम द एंग्जाइटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो आपने जो है यू हैव टू सेट द स्क्रीन टाइम. अच्छा, फिर यू हैव टू सी यानी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि व्हेन यू वांट टू डिटॉक्स योर लाइफ फ्रॉम सोशल मीडिया.
सोने से पहले ये जो मोबाइल्स देखने की आदत है, ये जो आप स्क्रोलिंग करते हैं, अब आप सोने के लिए लेट गए हैं, चलें जी आपका जो है आपने सोने का टाइम जो है से रात के जो है 9:30 बजे रखा हुआ है या 10 बजे रखा हुआ है, जो भी आप लोगों के टाइम्स हैं, बट ये है कि उस टाइम पे आप लेटते हैं तो आप कहते हैं भाई अब तो मेरे सोने का टाइम है, चलो थोड़ी देर मैं जो स्क्रॉल कर, उसमें स्क्रॉल करने में आपका टाइम लिमिट नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, उल्टा जो मोबाइल की रेडिएशंस हैं, जो स्क्रीन की जो है ब्राइटनेस है, वो भी आपकी आंखों में जाएगी और वैसे भी आपके जो है ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है सोते हुए आप मोबाइल्स को जो है स्क्रॉल करें. एंड आई डोंट नो, इट्स नॉट अबाउट नाउ, बट ये है कि पिछले सालों में आई रेड समवेयर इट वाज अ स्टडी कंडक्टेड और उसमें it was indicated कि भाई people who are in the habit of scrolling mobiles during night time, तो उनमें से बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई और बाज़ लोग जो है अंधे भी हो गए. सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग. हम बज़ाहिर मोबाइल्स तो ले लेते हैं, महंगे महंगे मोबाइल्स भी ले लेते हैं, बट वी आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि किस मोबाइल से कितनी रेडिएशन निकलती है. So from health point of view it's not good. And then radiations of every kind, it is bad for overall health. अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखें तो उनकी जो लाइफ स्पैन था वो कहीं ज़्यादा था, for the simple reason they did not have these gadgets, they were not in use of they did not use mobile screens. So जब सोना होता था उनका उठने का भी एक टाइम होता था which was comparatively earlier than ours, और देन उनका सोने का टाइम भी बहुत अर्ली होता था. सो उनका जो टाइम पीरियड था और उनका जो लाइफ स्पैन था इट वाज मच मोर एज़ कम्पेयर टू जो अब की जनरेशन है. सो वी कैन ईजली नो एंड वी कैन ईजली पॉन्डर एंड थिंक डीपली कि भाई डिफरेंसेस कहाँ पर आए हैं. सो टेक्नोलॉजी जहाँ पर आपकी लाइफ को इम्प्रूव करती है वहाँ पर एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा जो है एट अ डिसएडवांटेज भी रखती है. So you have to see कि भाई if you want to have a longer life, if you want to live a life which is full of meaning, कोई meaningful life, किसी उस लाइफ का कोई पर्पज़ हो, तो then you have to keep these things in mind. So उसके लिए डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है. देन आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, अगर आपने डिजिटल डिटॉक्स करना है, जस्ट ट्राई फॉर अ डे. वैसे आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. एक पूरा दिन विदाउट मोबाइल के गुजार के देखें, क्योंकि पहले भी तो लोग करते रहे हैं ना. जब मोबाइल नहीं थे, गैजेट नहीं थे, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग क्या करते थे, तब लोग सैर करते थे, तब लोग गार्डनिंग करते थे, तब लोग जो है वॉक करते थे, तब लोग जो है सहन में जो है ग्रुप बना कर, जो इसको हम जो है पंचायत कहते हैं, पंचायत में उस तरह एक चौपारा होता था, उसमें जो है सारे बड़े बुजुर्ग जो है बैठ जाते थे, फैमिलीज बैठ जाते थे और वो वहाँ पर गपशप लगाते थे, या इवन पीपल यूज टू प्ले बोर्ड गेम्स एज वेल. सो ये सब चीज़ें जो है बिफोर डिटॉक्स आती थी. उस टाइम पे हम इसको डिटॉक्स का नाम नहीं देते थे, बट दिस वाज एम्पल फैमिली टाइम. अब का जो ज़माना है उसमें पीपल डोंट हैव टाइम फॉर देयर फैमिलीज, दे डोंट हैव इवन टाइम फॉर देमसेल्व्स. सो अपनी मेंटल हेल्थ पे भी आपका फोकस करना ज़रूरी है और उसके लिए डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है. सो यू कैन टेक अ डे जिसमें आपने डिजिटल डिटॉक्स करना है. एंड यू नो व्हाट, बेस्ट जो डिजिटल डिटॉक्स है ना, दैट यू कैन डू अमंग नेचर. आप जो है हिली नॉर्दर्न एरियाज़ पे चले जाए ना, उस साइड पे चले जाएँ, वहाँ पर जो है नेट की बहुत प्रॉब्लम होती है. सो बट देन यू कैन ऑल्सो टेक नेट कनेक्शन जो उधर अवेलेबल हैं, लाइक आई गेस नॉर्दर्न एरियाज़ में स्कर्दू साइड पे जो है स्कर्दू नारान साइड पे, येस यू कैन गेट एसकॉम. सो वहाँ पर वर्क करता है. बट देन जैसे जैसे आप और एरियाज़ में जाते हैं, कहीं पर नेट कनेक्शन होता है, कहीं पर नहीं होता. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने सारे गैजेट्स को जो है ना साइड पे कर दें और जाकर सिर्फ नेचुरल ब्यूटी इंजॉय करें, विच इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थेरेपी. सो ये आप कर सकते हैं. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ संडेज़ जो है, अगेन आई वुड से कि भाई संडे का दिन तो जो है ना मेहरबानी करके डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ डिजिटल मोबाइल, डिजिटल गैजेट्स, इनसे जितना दूर आप रह सकते हैं रहें. और संडे के दिन तो आप स्पेसिफिकली जस्ट एंजॉय विथ योर फैमिली एंड यू डोंट हैव टू स्क्रॉल थ्रू द मोबाइल. क्योंकि ये जो एक छोटू से आदत पड़ गई है कि भी मोबाइल को स्क्रॉल करके देखना है कुछ है या नहीं है, बस वो जो बेकार की नोटिफिकेशंस है वो आपका दिमाग भी जो है उसमें खपाई रखती हैं और आपके अटेंशन भी आपको डिस्ट्रैक्टेड रखती हैं. So you can have a Sunday free of any gadgets. So it's going to be a detox free Sunday.
एंड देन मज़ीद आप क्या कर सकती हैं, व्हेन यू आर यू नो एंजॉइंग योर टाइम विद फैमिली, मे बी एट डिनर टाइम या लंच टाइम, तो आप जो है जितने गैजेट्स हैं उनको साइड पे रख दें एंड ट्राई कि भाई आपके खाने के साथ जो है वो गैजेट्स भी आपके साथ खाना ना खा रहे हों। सो उनके भी जो रेडिएशंस हैं, यू नीड टू हैव अ मील फुल ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें आप सिर्फ मील पे कंसंट्रेट कर रहे हो। क्योंकि अब क्या है, अब एक तरफ जो है एक नवाला नाक में होता है और आंखें मोबाइल में होती हैं। सो अगर आप नहीं देखेंगे कि नवाला जो है नाक की बजाय मुंह में जाना है, तो देन यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। सो योर माइंड ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक। उसके लिए जो है यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ ऑन दी सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो लिमिट लगा लें, जिससे हम अलार्म क्लॉक लगाते हैं कोई भी काम करने के लिए, इन द सेम वे अपने आप को लिमिट कर लें। ओके, मैंने दिन में जो है अगर जो है ये वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी आदतें बहुत पक्की हो गई हैं और आपसे छोड़ा नहीं जा रहा, तो आप अपने आप को जो है अलार्म लगा कर फिक्स करने की कोशिश करें कि भाई इतने टाइम पे मैंने जो है नहीं देखना, या ये मैंने नहीं करना, मैंने वो काम करना है। तो जब आप ऑल्टरनेट्स जो है तलाश करेंगे, तो आपके लिए जो है चीज़ों को पिकअप करना बहुत आसान होगा। बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन दिस थिंग कि भाई जो पक्की आदतें होती हैं वो जो है नहीं चेंज होती। वेल जो बुरी आदतें होती हैं उनको चेंज करना मुश्किल ज़रूर होता है बनना, बट नामुमकिन नहीं होता। सो यू हैव टू प्ले योर रोल एंड यू हैव टू ट्राई। ओके, सो देन अगेन मज़ीद मैं आपको जो है बताऊँगी कि भाई यू हैव टू क्यूरेट योर फीड। इफ़ यू आर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, आपका जो प्लेटफॉर्म पे जो फीड होती है ना, दैट इज़ योर सोल, दैट इज़ द फीड इज़ योर सोल। जिस तरह हम कहते हैं ना फूड फॉर थॉट, इन द सेम वे वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, आप जो पेजेस फॉलो कर रहे हैं, आप जिन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, या जिनका कंटेंट जो है प्रोसेस कर रहे हैं या डाइजेस्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी माइंडफुल रिगार्डिंग दैट। क्योंकि अगर आप जो है हर एक का जो है कंटेंट जो है कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्दी। So you have to only follow pages, या only have to process the content of people जिनके जो है ना जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो आपको एक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप जो है यू आर गोइंग टू स्क्रॉल थ्रू एवरी टॉम डिक एंड हैरी, तो इट्स नॉट गोइंग टू डू यू एनी बेनिफिट, रादर वो आपका टाइम ही वेस्ट करेगा। So what you can do is you can unfollow people or pages जो कि जिनको देखकर, जिनका कंटेंट देखकर आपको लगता है कि भी वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, देन वाई गो थ्रू देयर कंटेंट। अगर आपकी एनर्जी ड्रेन होनी है, या आप अगेन है वो एक जो एंग्जाइटी की फीलिंग है, या एक वो जो सिंकिंग फीलिंग है वो होगी, सो डोंट फॉलो सच पेजेस, डोंट फॉलो सच पीपल। आई नेवर फॉलो सच पीपल। और अगर जो है अनफॉर्चुनेटली कोई मेरे जो है उसमें फीड में मुझे कोई नज़र भी आ जाता है कि भाई दिस इज़ अ पेज जो कि आई डोंट नो किसने फॉलो किया, कब फॉलो किया, बट एनीवेज आई डू ब्लॉक देम इंस्टेंटली। क्योंकि वही बात है कि जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्या देखना। सो इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर मेंटल हेल्थ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है यू फॉलो द राइट पीपल एंड द राइट पेजेस, जो कि आपकी ज़िंदगी को किसी मस्बत डायरेक्शन में लेकर जाएं, ना कि आपकी एनर्जी भी ड्रेन कर दें, और आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है और जो इम्पॉर्टेंट टाइम है, जो वैल्यूबल टाइम है, वो भी अपने साथ जो है ना ले डूबें। राइट, सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर आप इसमें एक जो मज़ीद काम कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज शिफ्ट योर फोकस। क्योंकि जब तक आप फोकस अपना शिफ्ट नहीं करेंगे ना, यू वोंट बी एबल टू gain anything out of being on social media. Okay, I can see someone at the top of my screen, so whoever you are, welcome to my live session. If I can get your name, I cannot see your name, so I cannot address you without knowing your name. Okay, so like आपने अपना पर्पस किस तरह शिफ्ट करना है कि when you're on camera, तो what you need to do is just post because you want to. यानी यू हैव टू पोस्ट, इट्स नॉट दैट यू हैव टू, इट्स अबाउट कि भाई इफ़ यू वांट देन पोस्ट। इट्स नॉट दैट कि भाई आपने पोस्ट करना ही करना है। यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू फील लाइक दिस कि भाई अगर मैंने जो है पोस्ट नहीं किया तो मुझे लाइक्स नहीं मिलेंगी, या मैं जो हूँ आई वोंट फील वर्थी। यू पोस्ट क्योंकि यू हैव अ रीज़न टू पोस्ट। इफ़ अगर लाइक यू पोस्ट
एंड यू नो कि भाई आप जो पोस्ट कर रहे हैं उससे किसी का दिन बन जाएगा, उससे किसी के मुंह पे जो है स्माइल आ जाएगी, उससे जो है कोई अच्छा फील करेगा, उससे कोई जो है मोटिवेटेड फील करेगा, या शायद उससे जो है कोई इंसान जो है अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिली तो उसको आपके उस पोस्ट से वो डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आप उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नज़रिए से पोस्ट करें। इस चीज़ के लिए पोस्ट ना करें कि भाई मैं ये चीज़ पोस्ट करूँगी तो मुझे इतनी लाइक्स मिल जाएंगी, मैं ये चीज़ पोस्ट करूँगी तो इतने फॉलोअर्स मिल जाएंगे, मैं ये चीज़ पोस्ट करूँगी तो कि लोग जो है ये कहेंगे, you go for validation, not for this. Use social media because you want to. If you want to add value into people's life तो आप पोस्ट करें, एंड देन आप वो वाली पोस्टें करें जिससे लोगों की ज़िंदगी में कोई मीनिंगफुल वैल्यू ऐड हो, ना कि आप जो है ऐसी पोस्टें पोस्ट करें जिससे लोगों के दिल डूबे जाएं, जिससे लोगों को हो कि भाई ये शायद जो है ये बहुत सक्सेसफुल है और शायद मैं जो हूँ नकम्मा हूँ या मैं जो हूँ फेलियर हूँ। तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं पोस्ट करनी जिससे जो है लोगों में ये फीलिंग्स जो है डेवलप हों, रादर आप उनको जो है ऐसी चीज़ें पोस्ट करें जिनसे वो मोटिवेट हों, जिससे वो इंस्पायर हों, जिनसे उन्हें हो कि ओके येस हम भी जो अपनी लाइफ में ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इट्स द स्मॉल स्टेप्स दैट काउंट एंड इट्स द गुड जेस्चर्स दैट काउंट। अगर एंड प्रोडक्ट आपका जो है यू आर गोइंग टू थिंक कि भाई अगर मैं ये चीज़ पोस्ट करूँ तो इसके एंड में शायद मुझे कोई इतने कमीशन मिल जाएंगे या शायद मुझे जो है कोई इतने जो है मेरे डॉलर बन जाएंगे, डोंट पोस्ट इट फ्रॉम दिस नियत, पोस्ट इट फ्रॉम द नियत कि भाई आपका जो एक स्टेप है वो किसी की लाइफ में कितना वैल्यूएबल हो सकता है, या वो उसकी लाइफ जो है इन द गुड डायरेक्शन किस तरह चेंज कर सकता है। सो दिस इज़ अनदर थिंग। मज़ीद आप जो है क्या कर सकते हैं, like as I have already said, okay, Dr. Sama Ahmed, okay, I think this is the same doctor। अब आपने डॉक्टर सामा अहमद का नाम यूज़ करना शुरू कर दिया है, कभी तो अपने नाम को यूज़ करें। ओके, so walaikum assalam to you। okay, so you know what, never compare your behind the scenes with someone's highlighted life, क्योंकि जो अपनी हाईलाइटेड लाइफ को जो है पोर्ट्रे कर रही हैं, दे आर नॉट शोइंग द बिहाइंड द सीन्स। हो सकता है जो आपके बिहाइंड द सीन्स हैं वो उनके भी कभी बिहाइंड द सीन्स हो, बट दे आर नॉट शोइंग दैट, rather they are showing their highlighted reels, they are showing their highlighted life, they are showing their luxurious lifestyle। so वो कंपैरिजन में पढ़ के जो है ना अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी और अपनी ज़िंदगी जीरन नहीं करनी। जब कोई जो है अपनी हाईलाइटेड रील्स पोस्ट करे तो ऑलवेज सी बिहाइंड द सीन्स, ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स, ऑलवेज सी ट्राई टू रीड अंडर द लाइन्स कि भाई ये जो रील पोस्ट की है इसके बैक एंड पे क्या स्ट्रगल होगी, क्या जो है बिहाइंड द सीन चीज़ें होंगी, क्योंकि वो तो एक जो पोस्ट है वो पोस्ट हो सकता है आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद वो एक पोस्ट निकले। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। सो ये जो कंपैरिजन वाला एटीट्यूड है या जो कंपैरिजन वाली थिंकिंग है या जो वैलिडेशन वाली थिंकिंग है, डोंट गो फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि ये ज़िंदगी ख़राब करेंगी और सोशल एंग्जाइटी और ज़्यादा होगी। ओके, सो देन व्हाट, एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जो है सोशल लाइफ के हवाले से बात की जाए ना, या सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाए, तो ये वाली जो लाइफ है ना, दिस इज़ नॉट रियल लाइफ। इस लाइफ में जो है यू आर हैविंग फॉलोअर्स, आपको जो भी मिल रहा है वो बिहाइंड द सीन मिल रहा है, वो दैट इज़ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म। आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, यू डोंट नो दोज पीपल, दे आर जस्ट फॉलोअर्स, दे आर जस्ट पीपल हु आर इंगेजिंग विथ यू। येस, जब आप ऑफलाइन जाकर इन रियलिटी लोगों के साथ जो है इंगेज करती हैं एंड यू कम वन टू वन एंड यू डिस्कस विद देम, देन यू कम टू नो अबाउट द रियल पर्सन, एंड दैट इज़ व्हाट रियल लाइफ इज़। सो सोशल मीडिया लाइफ को डोंट थिंक कि दिस इज़ रियल लाइफ, दैट्स नॉट रियल लाइफ, दैट्स जस्ट मेक बिलीव लाइफ। So maybe yes, people are happy with that kind of life, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी से रियलिटी निकाल देंगे तो यू वुड ऑलवेज थिंक कि भाई जो आप देख रही हैं दैट इज़ द रियलिटी। वेल, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। सोशल मीडिया इट्स बेसिकली अ टूल। सो आप जो है टूल को अपने लिए जो है यूज़ इट टू फैसिलिटेट योर वर्क
और यूज़ इट टू फैसिलिटेट जिस तरह आप जो है अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं, बट don't try to make it a real life scenario. This is not real life reality. Real life is you go offline, you engage with real people, आप उनसे जो है direct discussions करें, you discuss your point of view, you discuss your professional life with them, you discuss कि भाई आप जो है किस तरह direction दे सकते हैं उन लोगों से if you meet them offline in the reality. So सोशल मीडिया पे आप जो कुछ देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ फैब्रिकेटेड. यू विल फाइंड वेरी फ्यू पीपल हु आर जेन्युइन पीपल ओवर हियर. सो जो जेन्युइन पीपल हैं उनकी कदर करें, उनको जब अप्रोच करते हैं बी डिसेंट इन अप्रोचिंग देम रादर देन थिंकिंग कि दे आर जस्ट लाइक एनी टॉम डिक एंड हैरी. सो अगर कोई आपके साथ जो है अपना वैल्यूबल टाइम जो है एक्सचेंज कर रहा है या आपको जो है कोई दनाई की बात बता रहा है तो ऐसे लोगों की कदर करें. ओके डॉक्टर उसामा अहमद, आप क्या मेरे से पूछ रहे हैं? ओके, एक मज़ीद चीज़ के इस्लामाबाद वाले बिरयानी नहीं खाते. इस्लामाबाद वाले बिरयानी नहीं खिलाते, इस्लामाबाद वाले कुछ भी नहीं खिलाते. If that's what you want to ask, इस्लामाबाद वाले आई डोंट नो. डॉक्टर उसामा, आप जो है किसी को देखें जो आपको जो है बिरयानी खिला सके. आई डोंट नो अबाउट पीपल के वो बिरयानी खिलाते हैं नहीं खिलाते. जस्ट डिपेंड्स कि भाई आपकी जो है कितनी जो है रैपट है लोगों के साथ. सो आई कांट रियली से. यस, जब वो दावत पे किसी को बुलाते हैं तब तो बिरयानी नहीं, हमारे यहाँ पर ज़्यादा पुलाव बनता है. इस्लामाबाद वाले ज़्यादा पुलाव शौक़ से खाते हैं. कराची साइड के जो हैं वो ज़्यादा बिरयानी शौक़ से खाते हैं. ओके, सो गेटिंग बैक टू माई टॉपिक, व्हाट एल्स यू कैन डू. अच्छा, इंगेज इन रियल लाइफ में आप मज़ीद किस तरह कर सकते हैं? आई कैन सी अ फ्यू पीपल एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो आई हैव टू सी कि भाई आपका नाम क्या है, ओनली देन आई कैन ब्रिंग यू लाइव ऑन कैमरा. जान यार अली, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. ओके, सो रियल लाइफ में आप मज़ीद जो है वॉक कर सकते हैं, बाहर नेचर में जाएं, नेचर के साथ कनेक्ट करें. दैट इज़ रियल लाइफ. अदर देन दैट यू कैन कॉल अप अ फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड से बातें कर सकते हैं. एंड खैर पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लोग जो है कॉल्स करते थे फ़ोन पे और आपस में बातचीत भी करते थे. बट अब जो है थोड़ा टाइम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि पीपल आर मोस्टली बिज़ी विद देयर लाइफ्स, और लाइफ्स के साथ जो है दे आर वर्किंग, so they can't every now and then talk to their friends. But yes, they do exchange certain chit chats, certain hi hellos, और maybe once in a blue moon वो एक दूसरे को कॉल भी कर लेते हैं. So you can always call up your friends. और देन इसके अलावा जो है यू कैन ऑलवेज पिक अप अ हॉबी, क्योंकि हॉबी भी इट्स अ गुड वे कि भाई आप किस तरह जो है ना सोशल नेटवर्क से जो है ना थोड़ा से जो है डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और डिटॉक्स कर सकते हैं. एंड यू कैन एंजॉय दैट हॉबी एज वेल. एंड देन मज़ीद आप इसमें ये कर सकते हैं कि भाई इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग और आपको जो है कुछ समझ नहीं आ रहा एंड यू कैन नॉट curtail this social media anxiety, what you can do it, you can always seek help, you can always visit counselors, you can always talk to a therapist, you can always talk to your mentor, या you can always talk to someone जिनके साथ आप comfortable feel करते हैं. And then क्योंकि what, बात करने में जो है आसानी क्या है और बात करने के पीछे जो है राज क्या है. बात करने के पीछे राज ये है कि भाई यू आर नॉट अलोन. आप जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, एवरी वन हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट स्टेज, और शायद वो अभी भी जा रहे हों. सो व्हेन यू टॉक टू पीपल आपको समझ आ जाती है कि भाई यू आर नॉट अलोन. आपके साथ भी और लोग हैं जो कि उस चीज़ के साथ रेजोनेट कर सकती हैं. व्हाट आई टॉक विद यू इन दीज सेशंस, these are not the things which I say in the air. These are the things जो कि मेरे साथ भी जो है लाइफ में हुई होती है, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ भी हो रही होती हैं, जो मेरे जो है करीब में लोग हैं या प्रोफेशनल जो है कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ भी वो चीज़ें जो है इट्स कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. सो वी कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम ईच एंड अदर एंड वी ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस कि भाई जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, एरियाज़, प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ में अकर करते हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए. सो दिस इज़ वाई पीपल इन अ वे, इन अ गुड वे, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, दोज हु यूज़ सोशल प्लेटफॉर्म फॉर द रीज़न व्हाट न्यू आई कैन लर्न. आज मैं
इवन when you are, आपकी जो feed है, when you go on your feed, तो you have to give in prompts, या you can always if you're going through pages, तो हमेशा उन पेजेस को जो है ना इस नियत के साथ जो है स्क्रॉल करें कि आज मैं जो हूँ इस पेज पे से क्या लर्न कर सकती हूँ, या मैं क्या लर्न कर सकता हूँ, या इसमें कौन सी ऐसी वैल्यूबल चीज़ है जो कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. दैट इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू नो कि भाई आप सोशल प्लेटफॉर्म को किस नियत से यूज़ कर रहे हैं. सो यूज़ इट एज अ टूल, नॉट एज समथिंग जो कि आपकी लाइफ को गवर्न करे. Okay, let's see. Jan Jar Ali, you are saying sorry for late. No worries, I have no issues. अच्छा, डॉक्टर सामा आप कह रहे हैं अब कॉल नहीं कर सकते ना एक बंद. हाँ, पता नहीं डॉक्टर सामा, आई डोंट नो आप क्या कमेंट्स लिख रहे हैं. आई कैन बेयरली रीड देम, सो आई विल प्रॉबेबली गो ऑफलाइन एंड सी कि भाई आपने क्या कमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. Okay, so this was another thing कि भाई if you are struggling, you have to talk about it. And then what, in the end I would say कि just as I have already said कि भाई social media जो है ना, it's just a tool. ठीक है, so rather कि वो आपको control करे, you try to control it and you try to use it as you feel you're comfortable in using it. एंड देन आपका जो पीस है, आपकी जो जॉय है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, और आपकी जो वर्थ है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. सो यू हैव टू डिपेंड ऑन दीज थिंग्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन. और इन द एंड आई वुड से कि भाई इफ़ यू लाइक टुडे सेशन तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर इट विद समवन जिसको जो है इन चीज़ों की ज़रूरत है, एंड समवन हु वांट्स टू हियर अबाउट इट एज वेल. Or in the comment box, do let me know कि भाई how do you cope up with social media strategy. Or in the end, do not forget to hit subscribe क्योंकि you know what, I'm here to make your life a bit lighter and going as well, and to reflect and to transform yourself in the most productive way. So inshallah, see you next time. Let's see what else I can discuss in the next session. Or in the meantime, I can see someone at the top of my screen. Let me see if I can take anyone live. Okay, there was someone else who wanted to come live, but I cannot see that person. So I can see Jan Yaradi. I'm just going to bring you live on camera. Let's see अगर आप live आते हैं. Okay, and I'm just going to read your comments on the other screen. Let me see. Jan Jar Ali, you are saying, I like your sessions because I'm learning something in my life. That is really good. So I wish you best of luck. Whatever you are learning, to just make the best of it. Okay, so it's still adding, and let me see if I have any comment. Noor, thank you so much for joining and watching this session. Okay, it's still adding, so I think probably there's some net issue, so I can't see you, coming live or getting connected. Okay, no worries, no issues. Okay, so this John Charlie, and there was some connection issues, and he couldn't come live. So that's all. I suppose. Let me just see. Let me just see. There was someone else who wanted to come live, and yes, I can't see this person. Okay, you wouldn't come on camera. Well, it's your like, even if I add you, you can just cover up your camera screen, so I won't be able to see you, and neither would everyone else. So we would just be voice. It's totally up to you. अगर आप वैसे भी नहीं आना चाहते, that's आपका फेस नजर आए, आपकी हमें सिर्फ आवाज भी आ जाए, तो that is also sufficient. But anyways, thank you so much for joining and going through the whole session. So I'll see you perhaps in a day. Let's see what else we can talk about. Till then, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.